بابری مسجد رام مندر تنازع پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس سے مسلمانوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فوری طور پر پریس کانفرنس طلب کر کے کہا ہے کہ ایک طرفہ فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو مسجد کے حق میں ہے، مسجد کے فیور میں، مسجد کے ثبوت میں ہے۔ اس کے علاوہ مندر کے حق میں کسی بھی دلیل کا انہوں نے اقرار نہیں کیا ہے، کسی بات کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے پوری زمین مندر بنانے کے لیے دے دی ہے اور ہمیں بدلے میں 5 ایکڑ دوسری جگہ زمین دی ہے جو ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا کچھ کہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے؟ یہ پریس کانفرنس اسدالدین اویسی کے گھر پر منعقد ہوئی اور وہاں موجود تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی، ڈاکٹر قاسم رسول یاس، کمال فاروقی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اور عالم دین اور دیگر تمام شخصیات وہاں موجود تھی، اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے سے عدم اتفاق کرنا، عدم اطمینان کا اظہار کرنا، ڈس ایگری ہونا ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم ریویو پٹیشن داخل کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں غور و خوض کریں گے، تو آئیے سناتے ہیں آپ کو پوری پریس کانفرنس۔ آ جائیں گے، بات کریں، کام شروع کر دیجیے۔ کرتے ہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت، میں قانون کا پریچے کروا دیتا ہوں۔ میرے بغل میں سینئر ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی صاحب ہیں جو اس کیس سے بہت لمبے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، الہ آباد ہائی کورٹ سے لے کر یہاں تک، اور آج بھی سپریم کورٹ کے آپ موجود تھے، وہی اس وقت میں آپ کو سمبودھت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میں مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری ہیں، ظفر یاب جیلانی صاحب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو لوگ ابھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کرنے والے ہیں، اس میں جمع طلبہ سے مولانا فضل الرحیم صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے امیر جناب صاحب حسینی صاحب ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کے شیش تمیمی صاحب ہیں جو آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میں جو ہمارے وکیل کورٹ میں موجود تھے وہ بھی میرے ساتھ میں موجود ہیں، جناب شکیل احمد سید صاحب جو میرے رائٹ سائڈ پہ ہیں، اور ابھی شمشاد صاحب جو شمشاد احمد صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے امام شمشاد صاحب، وہ بھی ہمارے وکیل تھے کورٹ میں، وہ بھی جسٹ پہنچنے والے ہیں، اور مولانا نیاز فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہوئے پیچھے ہوئے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ موجود ہیں ان کا چرچا کروائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں ابھی جیلانی صاحب آپ کو سمبودھت کریں۔ فرینڈس، جیسا ابھی ڈاکٹر کیوار الیاس صاحب نے کہا، ججمنٹ ابھی پروناؤنس ہوا، چیف جسٹس صاحب نے کافی تفصیل سے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو پڑھا، ریلیونٹ پورشنز۔ ججمنٹ میں بہت سی باتیں ہیں جو ملک کے کانسٹیٹیوشن، سیکولرزم اور 1991 کا ایکٹ وغیرہ وغیرہ، جو بہت سی باتیں جو کارآمد ہیں، لیکن جو اس کا کرکس ہے، انہوں نے یہ تو کہا کہ سوٹ نمبر 4 ہم پارٹلی ڈگری کرتے ہیں، لیکن ہماری زمین جو سوٹ نمبر 4 کی تھی وہ پوری کی پوری انہوں نے سوٹ نمبر 5 کے پلینٹف کو دے دی۔ یہ حد سے ہم بہت زیادہ ڈسٹسفائیڈ ہیں، کیونکہ آرٹیکل 142 کے تحت انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ آرٹیکل 142 کا اسکوپ یہاں تک ہے کہ کسی کے ویسٹڈ رائٹ کو آپ لے سکتے ہیں۔ پھر بھی اس پر ابھی ہم مشورہ کریں گے اپنے سینئر ایڈوکیٹ دھون صاحب سے بھی اور دوسرے وکیلوں سے بھی، اور اس کے بعد طے کریں گے کہ ویدر ٹو فائل اے ریویو اور نہ۔ لیکن ہمارا پروپوزل ہے یہ، کیونکہ اس میں فائننگ جو ہے اس پوائنٹ پر خاص طور سے وہ بہت ہی ہم سمجھتے ہیں انجسٹ ہے، لیکن سپریم کورٹ کا ججمنٹ اس کے ساتھ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، اور پورے ملک کے عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیس اور ٹرانکولیٹی کو مینٹین رکھیں، کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ یا کوئی احتجاج کسی سائڈ سے نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے کوئی ڈیفیٹ کسی کی ہے یا کسی کی وکٹری ہے۔ تو دیٹ وی ہیو آلویز سیڈ اینڈ ٹوڈے آلسو وی ریٹریٹ اٹ، اینڈ واٹ ایور لیگل کورس از پاسبل دیٹ وی ول اڈاپٹ۔ وی آر اسپیشلی dissatisfied with some findings of the Honorable Supreme Court, which we have just heard. But after going through the judgment, we will
clarify those things in detail. So today I can only say that judgment is not satisfactory and is not as per our expectations. We are not satisfied with it, and especially from the fact that the land of the mosque, even of the inner courtyard, in which prayers were offered, that too has been given to the other side. इसमें ये हम इसको न इक्विटी मान सकते हैं न जस्टिस मान सकते हैं, फिर भी हम इसके बारे में जो कुछ लीगल रेमेडी होगी वो उसके बारे में तय करेंगे, बाद में आपको बताएंगे. आज तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस में आए उसमें बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो चीफ जस्टिस ने प्रोनाउंस किया, जजमेंट सुनाया, उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जो मुल्क के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. मुस्तकबिल में इस सेकुलर स्ट्रक्चर को कायम रखने में ये जजमेंट कहीं किसी हद तक हमारा पूरे मुल्क में मददगार हो सकता है. तो हम हर पार्ट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसका जहाँ की फाइंडिंग दी गई है, खासतौर से जो फाइंडिंग इस बात की दी गई है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन माना गया 1528, जब मीर वाकई से कह दिया तो 1528 हो गया, और 1857 के बाद के ये कहा गया कि इसके बाद की जो एविडेंस मिलती है, इससे पहले की एविडेंस नमाज पढ़ने की नहीं मिलती. अब मैं इसको कुछ एक और नहीं कह सकता, लिख कर ही इस बात को कहूँगा, जो कुछ मैं कहना होगा कि जो चीज़ें आप रिलाई कर रहे हैं, टाइफन थैलर का जो ट्रैवलर्स अकाउंट रिलाई किया आपने, और उस टाइफन थैलर के ट्रैवलर्स अकाउंट में अगर ये लिखा है कि ये मस्जिद 3 गुंबद वाली बनाई हुई, तो मस्जिद के लिए अब नमाज पढ़ने का वो रिवॉर्ड लिखेगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ट्रैवलर्स के उसमें अकाउंट में, ना पूजा करने उसने लिखा है. तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं कि हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हैं जो उसकी डिटेल्स जजमेंट पढ़ने के बाद ही मेंशन की जाएंगी, और वो रिव्यू में ग्राउंड में मेंशन की जाएगी. अगर हमारे पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करती है, क्योंकि बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया है कि हमारे वकीलों की टीम और ख़ासतौर से धवन साहब और सीनियर वकला के मशवरे से उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर वो फाइनल डिसीजन देंगे कि रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा. तो इसलिए आज तक खाली अपनी राय दे सकते हैं कि इससे लगता है कि हम शायद रिव्यू फाइल करें, लेकिन अभी हम फाइनल नहीं कुछ कह सकते हैं. पूछना था कि ये जो ऑब्जर्वेशन आप कह रहे हैं सीबीआई के कि बहुत आगे जाएंगे ब्रदरहुड बनाने में और माहौल, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत यूजफुल हैं. जैसे 1971 के एक्ट को उन्होंने बहुत तारीफ की, जो 1971 का जैसे वर्षिप एक्ट है, 91 का जो एक्ट है, जो इसका हमें अंदेशा था. धवन साहब ने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था कि आपके जजमेंट से वो कमजोर न पा जाए, तो कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो पोर्शन सुना है उसमें उसको स्ट्रेंथन किया है. तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने ये भी कहा है कि किसी एक कम्युनिटी का बिलीफ दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर नहीं है, हमारे देश में इक्वलिटी है. ये ऑब्जर्वेशन जो हैं ये जाएंगे मुल्क के लिए फायदेमंद ऑब्जर्वेशन हैं, जो मुस्तकबिल में पूरे मुल्क को हेल्प करेंगे. जजमेंट में जो आप कह रहे हैं उसमें क्या टेक अवे पॉइंट्स हैं जो, देखिए मैं सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा ना कि उन्होंने सूट नंबर 4 को भी लिमिटेशन से बाहर नहीं माना, पार्टली डिक्री किया, और आउटर कोर्टयार्ड के बारे में हमें ग्रीवांस नहीं है, चूंकि आउटर कोर्टयार्ड का चबूतरा एग्जिस्ट कर रहा है. इनर कोर्टयार्ड के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनर कोर्टयार्ड में भी चूंकि मुसलमानों का कब्जा 1857 के पहले का एविडेंस नहीं, जो हमारे ख्याल से जो एविडेंस उन्होंने यूज की है वो सब रेफर कर रही मस्जिद को, और उस मस्जिद में कोई पूजा पाठ का जिक्र उसमें नहीं है. तो अब उसी एविडेंस को जो उसको उन्होंने रिलाई किया है हिंदुओं की आस्था के ताल्लुक से, वही एविडेंस तो मुसलमानों की मस्जिद शो कर रही. तो जब मस्जिद का एग्जिस्टेंस है और मस्जिद किसी और काम के लिए नहीं, ये खुद उन्होंने माना है कि हाँ 16 दिसंबर तक नमाज हुई. उन्होंने माना है कि इसमें मस्जिद का में सरेंडर नहीं किया गया था, मस्जिद को अबंडन नहीं किया गया था. तो फिर जब मस्जिद है तो नमाज वहाँ तो होगी. 1934 के डॉक्यूमेंट भी माने होंगे. तो जब मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको दूसरी कम्युनिटी को दे देना, ये हमारे समझ में इंसाफ नहीं है. आपने कहा रिव्यू के बारे में जो है एक मिनट आप जरा एक मिनट बताएं. अच्छा है वो पहले था
ASI मगर उन्होंने ये मैंने कहा था रिव्यू, देखिए एकड़ की बात ही नहीं है, मस्जिद का कोई बदल नहीं हो सकता है। हमारी शरीयत के मुताबिक हम मस्जिद किसी को दे नहीं सकते हैं, ना हम उसको गिफ्ट कर सकते हैं, ना हम उसको सेल कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला जो है जो होगा माना जाएगा। लेकिन जो बात हमने 5 एकड़ तो बिल्कुल उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जो बात आपने पूछी है, उन्होंने ये भी कहा है और ये हमारे फेवर हो जाता है कि अगरचे ASI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो वहाँ पर मटीरियल मिला वो 12th सेंचुरी के रिजेंबल से टेम्पल से रिजेंबल करता था, लेकिन 12th सेंचुरी से लेकर 1528 तक वहाँ क्या रहा है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं। तो ये 300 साल का गैप उन्होंने माना है। हमारा ये कहना है कि जजमेंट में जो उन्होंने प्रोनाउंस किया उसमें कहीं नहीं मिला कि हिंदुओं का केस ये नहीं था कि 12th सेंचुरी का टेम्पल डिमोलिश किया गया। हिंदुओं केस था कि विक्रमादित्य के जमाने का टेम्पल डिमोलिश किया गया है। इस पर हमें जजमेंट में जो पोर्शन सुनाए गए हैं वो कहीं सुनने में नहीं आया। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि बुनियाद उनकी है। सूट नंबर 5 में प्लेन डेलीगेशन ये थे कि विक्रमादित्य के जमाने में मंदिर बना था, जो विक्रमादित्य का जमाना आपको मालूम है ईसा मसीह के बराबर 57 साल पहले का जमाना, यानी 2000 साल पर। उस जमाने के ना तो ASI की रिपोर्ट में कोई स्ट्रक्चर मिले हैं, ना उस जमाने के कोई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो अब हमें जजमेंट पूरा पढ़ने के बाद अंदाजा होगा कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो अपरेंट एरर्स लगती है, मिस हो गई है, क्या वजह है, तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ने कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़े, जाहिर है पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, पूरा जजमेंट काफ़ी बल्कि है। तो इसलिए हम अभी नहीं कह पाएंगे कि उसके खिलाफ रिव्यू जरूर फाइल होगा। लेकिन हाँ, हमें लगता ऐसा है, चमन साहब का भी यही कहा कि इसको एग्जामिन करेंगे, लगता हमें कि ये रिव्यू उसका फाइल करना होगा। तो अभी हम उस तफसील भी नहीं जा सकते। 5 एकड़ जगह की नहीं जो बात कही जा रही है, बिल्कुल नहीं। हमने आपसे पहले बताया कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं, मस्जिद को फरोख्त नहीं किया जा सकता, हमारी मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह ताला की होती जाएगा। उसके बदले में कोई चीज देना, 5 करोड़ या 500 करोड़ जमीन की भी कोई वैल्यू नहीं। वो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंसेप्ट था उसको समझा नहीं गया है। हमारा कंसेप्ट ये नहीं था जमीन का, जमीन जो डेडिकेटेड है मस्जिद के लिए, जहाँ पर यूजर था हमने उसको माना है कि हाँ चबूतरे पर उनका यूजर है, उसके ऊपर जो राइट बनते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका कब्जा नहीं था, माना गया है कि 1949 में मूर्तियाँ रखी गई, जाहिर है वो हाईकोर्ट ने माना था। तो ये सब मानने के बाद भी जमीन उनको पूरी दे देना ये हमारे लिहाज से जस्ट नहीं है। इसी तरह से हम इसको जस्टिस और इक्विटी के टर्म्स में नहीं समझ पा रहे हैं, और आइंदा हम इसके बारे में रिव्यू के बारे में डिमोलिशन को उन्होंने खुद कंडेम किया, डिमोलिशन को कंडेम किया, ये कहा कि मूर्तियाँ रखना भी गलत था, सब चीज़ें कही हैं। यही मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तकबिल में मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारा राइट जो चला गया है इस जजमेंट से, उसके लिए हमें ज़रूर अभी अपने एफर्ट छोड़ना नहीं है, और हमें उम्मीद है कि हम इसके लिए तो साहब तमाम हकाइक दलाइल पेश किए गए, बावजूद इसके आपको लगता है कि जितने भी एविडेंसेस पेश किए गए कि उस पर किसी तरीके का दबाव का फैसला है या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल हम कुछ नहीं कहेंगे। ये चीज़ें कभी हमने नहीं कही हैं, हमने हाईकोर्ट के बारे में नहीं कहा है, ये आप समझ लीजिए। ये वो लोग कहते हैं दबाव वाली बात जो जजमेंट नहीं मानते हैं। हमने कभी नहीं कहा है किसी फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले में हमने कभी नहीं कहा दबाव का है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हम पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूरी रिस्पेक्ट हमेशा दी है, आज भी दे रहे हैं। जजमेंट से डिसएग्री करना ये हमारा राइट है, लेकिन तो हम उसको डिसएग्री करेंगे रिस्पेक्टफुली। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को गिराए, उसकी डिग्निटी कम करे। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सारे मुल्क की तवक्कुआत उससे हैं, और हम उस पर हमें एतमाद है पूरा, हमने हमेशा एतमाद किया है। लेकिन गलती किसी से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों केसेस में अपने जजमेंट रिव्यू किए, अनजोड़े केस में किया है, तो ये तो जजमेंट में गलती हो सकती है जजेस से, उसको रिव्यू करने के लिए हमारा राइट है।